શરૂ કર્યું છે મંજુબેન શરૂ કરો क्या क्या આજે ઇન્દુબેન की बात करो મંજુબેન સ્તુતિ કરાવો અમાર પેલા છોકરા આવ્યા હતા ને હા કઈ વાંધો નહીં રેકોર્ડિંગ શરૂ કર્યું છે બરાબર હા નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઓજ્જાયણમ નમો લોય સવસવણમ अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन। पंच परम परमेश्वरी प्रभु को बार बार मेरा वंदन। સરસ ततो इंद्र वंदित त्रिजगहित निरमल मधुर बदनारने निसीम गुणधर नारने जित भव नमो जिन राजने। ओम नमो सिद्धेभ्यो, ओम नमो सिद्धेभ्यो, ओम नमो सिद्धेभ्यो। Let me minimize this guy. Okay. On. Stop share. Okay, stop share. अच्छा. तो जो है Okay, yeah. Okay. Okay. હવે હવે ઓલું શરૂ કરું ને Go to stop. હા Go and open your Yugal Kishore. આ યુગલ કિશોરજીનું આ ચોથું પ્રવચન ઓકે પાર્ટ 4 શરૂ કરું છું हाँ करो। એનું ઓલું ક્યાં છે याद कराने वाली એક મિનિટ સમયસર ક્યાં છે साक्षात સમયસર ખોલું ચાલો अनादि से नहीं हुई उसकी अनुभूति एक क्षण में हो जाए। ઓ સમયસર जीव पुरुषार्थ करे तो हो जाए, पर निमित्तता के रूप में समय सार एक ऐसी अद्भुत रचना है आचार्य कुंद देव की कि उससे यदि रुचि पूर्वक पढ़ा जाए, रुचि पूर्वक सुना जाए और सद्गुरु का उपदेश भी समय सार स्वरूप शुद्धात्मा का मिलता ही है। ऐसा उपदेश मिलने पर अंतर में पर्याय का मोह तोड़कर शुद्धात्मा की भीतर से उछलती हुई रुचि पैदा हो तो आत्मानुभूति हो ही हो, निश्चित ही उस आत्मा का जिसको ज्ञायक कहा है यहाँ पर, उस ज्ञायक आत्मा की अनुभूति और सम्यक दर्शन हो। ऐसी अद्भुत रचना आचार्य देव प्रातः स्मरणीय कुंद की है। छठी गाथा में बहुत गहरी बात करते हैं। पहले द्रव्य और पर्याय को अभेद करके बात की, द्रव्य और पर्याय को एक में करके बात की। यद्यपि द्रव्य और पर्याय वे दो हिस्से हैं एक पदार्थ के और दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। न्यारा न्यारा होने पर भी एक ही पदार्थ के दो अवयव होने से वे अभेद भी हैं। इसलिए द्रव्य को पर्याय के साथ एक में करके
और अनंत गुण और पर्याय में वो द्रव्य पसरा हुआ है। अनंत गुण और पर्याय रूप वो द्रव्य ही, वो समय ही, वो जीव तत्व ही परिणमित होता है, ऐसा आचार्य ने पहले कहा। उसका कारण था, वो बात श्रद्धा की नहीं, श्रद्धा का विषय नहीं। वो द्रव्य में पर्याय को मिलाकर जो कथन किया जाए, ऐसा जो प्रमाण का कथन है, वो श्रद्धा के लायक नहीं। लेकिन प्रारंभ में यह बात जानने योग्य होती है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों उसके साथ एक में एक होने के कारण वे उसके अभेद अवयव हैं, अभेद अंग हैं। इसलिए રજની આમાં દ્રવ્ય ને પર્યાય મિક્સમાં શું એટલે શું કયું ક્યારે દ્રવ્યની વચન હતું ને ક્યારે પર્યાયનું કહેતા હતા ગાથામાં તો નો હાઉ ડુ યુ સેપરેટ ધેમ છે ને તો પહેલું જે કે છે ને એ દ્રવ્યનું કે છે આપણે અને શું બીજું વોટ ઇઝ ધ દ્રવ્ય પાર્ટ કે ભાઈ નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એવી રીતે શુદ્ધ કથા એ જ્ઞાત તે તો તેમાં દ્રવ્ય પાઠ કયો આવે ને પર્યાય પાઠ કયો આવે પ્રમત અમત પાઠ છે પર્યાય પાઠ. હા પર્યાય પાઠ એ એટલે અચ્છા. એક સમયની જે પર્યાય હોય એ પ્રમત હોય કે અપ્રમત હોય, ગમે તે પ્રકાર હા. હોય, એ એક સમયની છે, એ પર્યાય છે. હા, હા. અને જે દ્રવ્ય બાજુ પર રહી ગયું એટલે બંનેને ત્રિકાળી સાથે કરીને વાત કરી અચ્છા. એટલે એ પર્યાય એટલે એ પેલા આખી પરિણામી દ્રવ્ય છે એમાંથી હવે પર્યાયને છૂડી કાઢી છે. હા બરાબર એટલે ધેટ વોઝ ધ પર્યાય પાર્ટ કે ભાઈ અપ્રમત દશા કે પ્રમત દશા નથી ઇઝ પર્યાય પાર્ટ. હા હા ઓકે. એક બહુ સરસ વાંચ્યું મેં ગઈકાલે હા લેજન્ડ હું કરું છું ને બુધમાં હા હા એમાં આપણે પર્યાયને જુદા પાડીએ છીએ ને પર્યાયને હા આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ કે દ્રવ્ય અને પર્યાયનું ભેગદાન કરવું છે. હા રાઈટ રાઈટ તો પર્યાય પર આપણને જે આપણે પર્યાયથી જ દ્રવ્યને જોઈએ છીએ ને, હા રાઈટ આપણે પર્યાય કેવો છે એવું જ આપણે દ્રવ્ય માની લઈએ છીએ. હા 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 આપણે પર્યાય માટે આપણે માટે પર્યાય જ દ્રવ્ય થઈ ગયું છે. હા 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 એને આપણે જુદી નથી જોઈ શકતા. હા હા તો પર્યાયને જુદી જોવી હોય ને તો હા એમણે બહુ સરસ દાખલો આપેલો એક જ સેન્ટેન્સનું એનું હા 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 કે કોઈ એક બાળક હોય, નાનકડું બાળક, હમ એ સમજો કે બાળક હોય કે કોઈ પણ જીવ હોય, સમજો હા હા કે આ સમયે જીવે, આ સમયે જન્મ્યો, હા એ સમયે મરી ગયું, એટલે બે સમય, એટલે એક સમય બરાબર છે right, તરત જ. હા તો આપણે એમાં એના પછી અટેચમેન્ટ ન થાય ને, ના ના તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બનાવી, એક બંગલો બનાવવાનો તરત જ તોડી કાઢ્યો, હા બરાબર છે ઓકે, તો આપણે એની સાથે કોઈ દિવસ ઓલું ન થાય. એમ પર્યાયનું એવું છે, હું તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું, હા એટલે હા આપણું એકત્વ સ્થાપવાનું છે ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં. હા 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 અને જે પર્યાય છે એ ક્ષણભંગુર છે, એક સેકન્ડ પણ એક સમય પણ જ રહે છે ખાલી એનો. એમાં આપણે એકત્વ સ્થાપી દીધું છે અત્યાર સુધીમાં, પણ એને આપણે એમ જોઈએ કે એક સેકન્ડમાં તો જતી રહે છે. એટલે કેવળ જ્ઞાની પણ પર્યાય હોય, હા 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 આખા લોકોને જાણની એમ કે ને કે મોટા મોટી પર્યાય જેને કહે ને આપણે, હા 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 પણ એક સેકન્ડ એનું આયુષ્ય જ એક વર્ષનું છે, બરાબર એક છે સમયનું છે. હા 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 પછી એટલે આપણે શા માટે એની સાથે આપણે એકત્વ કરીએ છીએ? આપણું એકત્વ તો પોતાના ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં હોવું જોઈએ. એટલે પર્યાય વગર બી દ્રવ્ય જોવાનું છે પણ હા. પર્યાય દ્રવ્ય જોવા જણાશે તો પર્યાયમાં જ ને પણ પણ મારું એકત્વ કોનામાં છે? મારું એકત્વ કોનામાં છે? પર્યાયમાં અત્યારે ના, મારે એકત્વ કરવાનું છે હા દ્રવ્યમાં. એ તો દ્રવ્યમાં કરવાનું રાઈટ હા, તો રાઈટ આપણું એકત્વ અત્યારે પર્યાયમાં છે. અચ્છા હું એટલે એન્જિનિયર છું, હું દ્રવ્ય માણસ છું, હા હું મનુષ્ય છું. આપણે એમ એ બધું કરીએ છીએ ને આપણે હા 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 આપણે એ જાતને ક્યાં માનીએ છીએ બીજી રીતે? હા રાઈટ 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 હા, હા તો એ વગર દ્રવ્ય એ બધી એક સમયમાં જતી રહેવાની છે બધી પર્યાય. હા હા એ વસ્તુ રાઈટ રાઈટ એમ છે. અચ્છા ચલો એટલે આપણે વી શુડ બી સીઈંગ દ્રવ્ય એટ ઓલ ટાઈમ્સ હા, હું દ્રવ્ય છું, ભલે આ બધી વાતો પર્યાયમાં થાય છે,
હા એવા રાઈટ 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 જણાય છે પર્યાયમાં, પણ મારું એકત્વ ક્યાં છે? લક્ષ ત્યાં આવવું જોઈએ. આ તો એ પર્યાયનું લક્ષ દ્રવ્ય ઉપર છે. એટલે જો દ્રવ્યનું લક્ષ જે દિવસે થશે એ દિવસે પર્યાય એનું કામ કરતી હશે આપણા હા, કામ બધું પર્યાયમાં જ થશે. હા અચ્છા હા, બરાબર છે. હા રાઈટ રાઈટ. મારું એકત્વ પર્યાયમાં નહીં હોય. ઓ આઈ સી. ઓકે 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 ઓકે. અચ્છા એટલે મારું લક્ષ રજનીભાઈ એમ પર્યાય. કહી શકાય ને, પર્યાય એટલે ઈ સમયની અવસ્થા. હા, એક સમયની અવસ્થા છે. હા, બસ ઈ આપણે સમયની એને- એક સમયની અવસ્થા, આત્માની હા. જ અવસ્થા, પણ ટેમ્પરરી અવસ્થા એમ. હા, અવસ્થા છે. હા, પણ આપણે હા. એમાં એકત્વ સ્થાપી દીધું છે. હા એટલે એનાથી- ઘણી વાર શું થાય સમજવામાં, શરૂઆતમાં શું થાય કે એમ થાય કે આ પર્યાય જુદી છે ને દ્રવ્ય જુદું છે. શરૂઆતમાં મને એવું થતું હતું બહુ પહેલા, મને થયું પર્યાય જુદી ને આત્મા જુદો, પર્યાયનું આમ. પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે પર્યાય ઇઝ ધ આત્માની અવસ્થા એમ, ઈ સમયની ટેમ્પરરી 1 મિનિટની સમયની અવસ્થા. બરાબર. એટલે પછી મને સમજણ પડવા માંડી બધી, એવું થયું હતું મને. હવે શું થશે કે આપણે લાચેવાનું વધારે વાંચવું ને એટલે ગુરુદેવનું પણ નેચરલી કે પર્યાયને આપણે પરદ્રવ્ય લાગશે આપણને. અચ્છા આપણી અચ્છા. પોતાની પર્યાય આપણને પરદ્રવ્ય લાગશે. હા. જેમ સામે દિવાલ પરદ્રવ્ય છે, એમ મારી પર્યાય પણ દિવાલ છે, Oh no. એવું લાગવું જોઈએ. ઈ પરમેનન્ટ અવસ્થા નથી, બસ એમ પરમેનન્ટ અવસ્થા નથી. હા. કે જેનું 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 આયુષ્ય જે એક સમયનું હોય, મારે એમાં થઈને હું મારો પણ મનર્થ થઈ જશે. હું મારી જાતને પર્યાય માનીશ તો, હા. પણ હું તો ત્રિકાળી છું. પણ એવી ને એવી પછી પર્યાય થાય છે એટલે આપણને દ્રવ્ય જેવું હા. લાગે. રાઈટ, બરાબર. ઓ બોય. અચ્છા ઓકે. ऑलराइट. अभेदता की दृष्टि से पहले इसलिए वर्णन किया कि सारे गुण और पर्याय वे आत्मा में पसर जाएं और आत्मा उन गुण पर्याय में पसर जाए, ऐसा हुआ हो तो किसी अन्य द्रव्य के प्रवेश की वहां पर गुंजाइश नहीं रहेगी. महत्वपूर्ण बात है वो भी, उसे न એટલે રવિ શું કહે છે કે ભાઈ ઇફ યુ આર ફોકસ્ડ ઓન ઓલું પર્યાય સાથેનું દ્રવ્ય, તો એટલીસ્ટ યુ આર નોટ થિંકિંગ ઓફ એનીથિંગ એલ્સ એમ. થોડું જવા દે આગળ, હજી થોડું ઓકે આગળ જવા દે. સારું સારું. અત્યાર સુધી એનો ઓવરઓલ આઈડિયા આવશે. હા સારું સારું સારું. 5-10 મિનિટ જવા દે ને જરા. સારું સારું સારું. એનો સબ્જેક્ટ જરા ડેવલપ કરે ને તો વધારે ખ્યાલ આવે. હા સારું સારું સારું. ઓકે. जाने और यहाँ समय सार की चर्चा करने लगे तो वह बात अधूरी रहेगी. समय सार भी हाथ नहीं आएगा, शुद्धात्मा भी हाथ नहीं आएगा. पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अभेद है, क्योंकि पदार्थ को द्रव्य और पर्याय में फैला हुआ, द्रव्य और पर्याय को जिसने अपने में पूरी तरह समेट लिया है, ऐसा जो आत्म तत्व है वो परद्रव्यों से भिन्न होने के कारण और परद्रव्य के गुण और पर्याय उनके साथ परद्रव्य अभेद होने के कारण परस्पर गुण और पर्यायों का और द्रव्यों का आवागमन नहीं होता एक दूसरे में. ये सिद्ध होता है उससे, ये द्रव्य अपने गुण पर्याय में पूरी तरह पसर गया, अर्थात द्रव्य ही परिणमित हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप. तो द्रव्य जब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ तो दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है वो द्रव्यमय हो गई ना, द्रव्य रूप हो गई ना. इसलिए वो द्रव्य पूरी तरह से अपने गुण और पर्यायों पर अधिकारी सिद्ध हो गया, पूरी तरह से. अब इसके गुण पर्याय कहीं जाने वाले नहीं, पर्याय का एक भी अंश द्रव्य को छोड़कर जाने वाला नहीं, वो पदार्थ के ही अधिकार में रहेगा. और अन्य द्रव्य के गुण पर्याय भी इसी तरह
उस अन्य द्रव्य के अधिकार में ही रहेंगे। इस प्रकार वस्तु व्यवस्था की जो स्वतंत्रता है, सुंदरता है ये। हर पदार्थ अपने एकत्व को लेकर गुण पर्याय के साथ एक रूप होकर परिणमित हो और अन्य से सदा भिन्न रहे, भिन्न है और भिन्न ही रहे। परस्पर एक दूसरे में किसी का आदान प्रदान बिल्कुल न हो। ये कितनी बढ़िया यानी स्वायत्त शासन, अपने अवलंबन पर चलने वाला शासन। हर पदार्थ का शासन अपने अवलंबन पर चलने वाला है, किसी दूसरे का उसमें थोड़ा भी सहारा नहीं है। इस प्रकार दूसरे पदार्थों से जीव पदार्थ को बिल्कुल निरपेक्ष बताकर आचार्य ने समय सार का प्रारंभ किया। अब अन्य पदार्थ की चर्चा नहीं रही, अन्य पदार्थ के संबंध में विकल्प टूट गए। हमारे द्रव्य गुण पर्याय वो एकदम हमारे पास, हमारे अधिकार में रहे अब एक मिनिट, और हमारा द्रव्य ही हमारे गुण पर्यायों में फैल। હા શું કહે છે? જો અત્યાર સુધી શું વાત કરી, હા બધી બીજી ત્રીજી ગાથાની વાત કરી પહેલા, હા કે પહેલા એને દ્રવ્યને જો બે જાતનું ભેદ જ્ઞાન હોય, હા એમાં એકમાં પ્રમાણની સિદ્ધિ થાય હમ અને પછી આપણા ત્રિકાળીની સિદ્ધિ થાય. અચ્છા. એટલે એક તો છે ને કે હું અને આ ભીત છે એ જે હા. અલગ અલગ દ્રવ્ય છે ને, હા એટલે એ રીતે એ જાતનું ભેદ જ્ઞાન કર્યું કે પ્રમાણ પોતાના દ્રવ્ય પર્યાયમાં વ્યાપે છે હા પણ બીજાના દ્રવ્ય પર્યાયમાં નથી વ્યાપતું. બરાબર છે. એટલે ભીતના દ્રવ્ય ગુણ હા. પર્યાય અને મારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય જુદા છે. જુદા રાઈટ. એટલે મારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમાં એના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, અત્યંત મારા ભાવ. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એનામાં આવતા નથી. હા એ પ્રમાણની સિદ્ધિ કહેવાય, પ્રમાણ. હા હા એટલે મારું પોતાનું અસ્તિત્વ નક્કી કર્યું. હા 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 મારી એટલે શું લિમિટ છે કે મારું ઘર અને તારું ઘર હોય બાજુમાં, હા 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 તો આપણું ઘર અલગ અલગ છે ને, હા રાઈટ એટલે રાઈટ. બે ઘરની અલગ અલગ વ્યવસ્થા જુદી નક્કી કરી પ્રમાણ. હા બરાબર છે. પછી બરાબર. તમે તમારા ઘરની અંદર આવો પછી મને એમ થાય કે જો સુજાતાનું ઘર તો ત્યાં છે, એનું રૂમ આ છે, આનો રૂમ આનો છે, આનો રૂમ આનો છે, હા. આપણે અંદર પછી ડિવાઈડ પડીએ ને, રાઈટ રાઈટ. એટલે એની અંદર પછી પોતાની સિદ્ધિ થાય, દ્રવ્યની હા. સિદ્ધિ. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. હા, એટલે અત્યાર સુધી વાત કરી છે બધી એ પ્રમાણની સિદ્ધિ કરી. ઓ એટલે પેલા પ્રમાણમાં આવી જાવ પેલા એમ કે છે. હા, તો આપણે બધા છાપા વાંચીએ છીએ, આપણે વાંચીએ છીએ બધું. હા રાઈટ શું રાઈટ. કરીએ છીએ આપણે કે હા આપણે પ્રમાણની બહાર જઈએ છીએ, હા હા આપણે હા. આપણી વાત નથી કરતા. ના. નરેન્દ્ર મોદીએ શું કીધું ને Right. ટ્રમ્પે શું કીધું એની વાત કરીએ છીએ ને આપણે, હા હા એટલે આપણે પ્રમાણની જ બહાર જતા રહીએ છીએ. હા હા હવે પ્રમાણમાં ના હા બધું હા આપણા તારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની વાત કર, બીજી વાત તો છોડી દે. યા રાઈટ રાઈટ. તો હવે એવું લાગે છે કે હવે યુગલ કસરજી પ્રમાણની વાત કરશે, હા હા એટલે હા બાકીના બધા દ્રવ્યને છોડી દીધા, હા રાઈટ રાઈટ. તો આપણે વિચાર પણ નહીં કરવાનો. અચ્છા then now we can focus On rest of the ourselves. on On ourselves. હા. ourselves. Yeah. હા, એટલે એ પ્રમાણની સ્થિતિ કહેવાય પહેલી હતી એ, અને હવે બીજી છે ને એને કહે છે પ્રયોજનની સ્થિતિ. પ્રયોજન, આપણું પ્રયોજન શું છે? રાઈટ. આપણે તો મોક્ષ મેળવવો છે ને. યા રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હા, તો આપણે તો મોક્ષ તો આપણે ટ્રમ્પનો વિચાર કરવાથી મોક્ષ નહીં મળે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ઓકે. એટલે હવે આપણે અંદર આવ્યા, હા બરાબર છે. હવે અંદરની વાત કરશે, એમાંથી પર્યાયની છૂટી પાડશે. આઈ સી. ઓકે ઓકે ચાલો. फैला हुआ है, गुण पर्यायों को उसने अपने में समेट लिया है, इस तरह सिमट गए हैं कि वे सारा का सारा पदार्थ उन गुण और पर्याय से भरा हुआ है और गुण पर्याय में द्रव्य पसरा हुआ है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय से भरा हुआ वो पदार्थ, उसमें अन्य पदार्थ की पर्याय के आने की कहाँ गुंजाइश है। इस तरह पर पदार्थ से कर्ता कर्म भाव सर्वथा कारणकारी भाव कर्ता कर्म भाव समाप्त हो जाता है और हमें केवल अपने द्रव्य गुण पर्याय पर विचार का अवकाश रह जाता है। वो बात करने के बाद आचार्य कहते हैं कि जिस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा
समय की बात की पहले, द्रव्य गुण पर्याय वाले पूरे समय की। फिर कहते हैं वो जो समय है वो अपने गुण पर्याय को अपने में समेट कर बैठा हुआ अनादि अनंत पदार्थ है, एकत्व रूप है, अर्थात अपने स्वभावों के साथ, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्वभाव के साथ, अपने अनंत गुणों के साथ वो एक में एक है और अन्य से बिल्कुल विभक्त है, न्यारा है। इस तरह अन्य से न्यारा और अपने साथ एक में एक ऐसा जो समय है वो लोक में सुंदर है, वही सुंदर है। और उसी को आज तक जीव ने नहीं देखा, उसी को सुना नहीं, उससे परिचय नहीं किया और उसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि उसकी सत्ता को इसने स्वीकार ही नहीं किया। इसने केवल उस एकत्व विभक्त आत्म तत्व के स्थायी रूप से, शाश्वत और ध्रुव रूप से विद्यमान होने पर भी केवल होने वाली पर्याय में ये इतना मुग्ध हुआ, एक इंद्री से लगाकर सैनी पंचेंद्री दशा तक ये इतना मुग्ध हुआ कि उस पर्याय के चंगुल में से ये बाहर नहीं निकल पाया। और ज्यों-ज्यों पर्याय एक एक समय में नष्ट होती गई, त्यों-त्यों ये अपना नाश मानता हुआ महान आकुलित होता रहा। अब इसकी आकुलता को मिटाने के लिए आचार्य छठी गाथा की रचना करते हैं। उसमें आचार्य ने कहा, सबसे पहले ही कहा, सबसे पहले जैसे एक प्रकार का अटैक होता है ना, आक्रमण होता है ना, जैसे उसी प्रकार सबसे पहले ही आचार्य ने पहली पंक्ति में ये कहा, आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। Sorry, Harry. ट्रायंगल पर बता देगी ना। अच्छा, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ आत्मा को एक में किया होना चाहिए था, क्योंकि वे एक ही पदार्थ के अवयव हैं। इसलिए सारे के सारे पदार्थ के साथ अभेद होने चाहिए और पदार्थ उनके साथ अभेद होना चाहिए। लेकिन इतनी ही नहीं है चर्चा, बात इतनी नहीं है। वहां जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वो भी ध्रुव तत्व के अवलंबन से उत्पन्न होती है। उसकी विधि भी वहां वही है, दूसरी विधि बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो ध्रुव तत्व है कि जिसका अवलंबन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय लेकर उसमें स्थित होती है। वहां तो कहा कि वो जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि दर्शन ज्ञान की पर्याय वो स्वयं अपना मोह तोड़कर, प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का मोह तोड़कर, मैंने अपना मोह तोड़कर, अपना ममत्व तोड़कर, और वो ध्रुव जो आत्म तत्व है, ध्रुव समय, ध्रुव आत्म तत्व, समय सार स्वरूप परमात्म तत्व, शाश्वत तत्व, वो उसमें स्थित हो जाती है। वो उसके साथ एक में एक होकर और अपने को ध्रुव अनुभव करती है। इसलिए आचार्य कहते हैं विधि विलक्षण है ना, कि विलक्षण विधि है ना। अरे द्रव्य गुण पर्याय सूत्र रति जरा रिवाइंड करो कि डिड वी मिस एनीथिंग, એટલે એડ આવતી હતી ત્યારે કે બરાબર છે? ઓકે ના વી ડોન્ટ મિસ એનીથિંગ. ઓકે, સારું સારું સારું. હવે પદાર્થ પ્રયોજન કરે છે. આ પ્રયોજનની અંદર
હવે હવે ઘરની અંદર ભાગલા પડે છે. હા બરાબર છે, તો રાઈટ તો રાઈટ. કે તારું ઘર ને મારું ઘર અલગ અલગ બતાવ્યું હા પહેલા. બરાબર છે, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હવે મારા ઘરની અંદર ભાગલા પડે છે કે મારો રૂમ કયો અને બીજાનો રૂમ હા કયો. રાઈટ 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 રાઈટ. से जो पर्याय हैं, क्षणभंगुर पर्याय, उन क्षणभंगुर पर्याय को एक ओर करके उनको बिल्कुल भिन्न जानकर, उनको परद्रव्य जैसा जानकर, परद्रव्य मानकर, परद्रव्य ही मानकर, भिन्न मानकर, एकमात्र मैं तो शाश्वत ध्रुव तत्व हूँ, क्योंकि जो पर्याय है वो क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर होने के कारण બસ वे એક મિનિટ. मुझे निभा नहीं. અશોક, અત્યારે તે જે કર્યું છે ને હા. એ ચાલુ, એ જો મને તું ચાલુ રાખ. હા. અને પછી સ્ક્રેચ કરીને can you put the સમયસર on the Yeah, screen? yeah, yeah. આને આ I'm ચાલુ ex- રહેશે. yeah, ઓલું I'm ચાલુ getting, રાખવાનું. sorry, એક મિનિટ. I'm getting out of full screen and I can still play, અહીંયા. Can you split the screen? Can હા. you split the screen? Oh yeah, તે ડબલ નું મને. મેં સમજાવ્યું ગઈકાલે. Oh, let's see. Theater mode, okay. Mini player, let's see. I'll do, we have a separate session. Yeah, નકર બધા Okay, time- સારું. Okay. But do you want me to open સમસ્યા? મારે અહીંયા છે. You can do it. પછી બધા ટાઈમ ન પકડે. Okay, let's see. ના પણ okay, then you will be able to listen to the other stuff, but and I can. But do you think? જા દે. I'll let આપણે પછી આ પતી જાય ને પછી કરાવીશ. You can Okay. have both. આ બાજુ સમજી ચાલે, બીજી બાજુ સમયસર દેખાય. બંને દેખાય. અચ્છા, સમજી ગયો. That I'm not there. Yeah, okay. Yeah, okay, Now જા. let me get back to. Okay, like this. नहीं सकती. Okay. जो क्षणभंगुर हो, जिसका जीवन ही एक समय का हो, जिसका जीवन लंबा नहीं हो, अनंत नहीं हो, पर एक समय का जिसका जीवन हो, वह यदि किसी दूसरे को साथ ले तो उसके साथ वो भी डूबेगा. इस तरह अपने आप को प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप मानने वाला अनादि का अज्ञानी जीव, वह उस प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का अवलंबन लेकर मैंने उसमें अहम करता हुआ मैं प्रमादी हूँ अथवा मैं अप्रमादी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ अथवा मैं मुनि हूँ, इस प्रकार उन दशाओं में मुग्ध होकर और उन दशाओं जितना ही आत्मा को मानने वाला जो अज्ञानी है, वो प्रति समय मृत्यु का अनुभव करता हुआ भीषण आकुलता का अनुभव करता है. ये स्वाभाविक बात है. ये एक 2 वर्ष का बालक हो और उस 2 वर्ष का बालक है तो हमारा होने पर भी यदि हम ये आशा करें कि क्योंकि ये हमारा है बालक, इसलिए ये हमारे परिवार को कमाकर खिलावे, तो ये बात संभव नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ऐसा नहीं है. इसी तरह पर्याय है द्रव्य की, तो द्रव्य की होने पर भी यहाँ तो बेलिहाज काम है, अर्थात पर्याय द्रव्य की होने पर भी उसका स्वरूप क्षणभंगुर ही है, वो अनित्य ही है, वो एक समय में चली ही जाती है और नई आ जाती है. इस तरह वो क्षणभंगुर होने के कारण वो ध्रुव द्रव्य को सहारा नहीं दे सकती, आत्मा को सहारा नहीं दे सकती. इसलिए उस पर्याय का मोह, पर्याय का ममत्व और पर्याय का अहम तोड़ने लायक है. ऐसा निश्चय करके आचार्य ने प्रारंभ में ही कहा, आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है. अरे प्रमत्त माने अशुद्ध दशाएं, मोह राग द्वेष की दशाएं, कि जो आत्मा का संवेदन, आत्मा का अनुभव नहीं करती हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अप्रमत्त दशाएं,
जो आत्मा का अनुभव करती हैं, उन दोनों दशाओं के लिए आचार्य कहते हैं प्रमत्त मन असावधान दशा, अप्रमत्त मन प्रमत्त मन असावधान दशा, अप्रमत्त मन सावधान, स्वरूप में सावधान, आत्मा में सावधान, आत्मा के साथ आत्मा बनकर रहने वाली ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, स्वयं को डुबो कर रहने वाली जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अप्रमत्त दशा वो आत्मा नहीं है, वो ज्ञायक नहीं है। और प्रमत्त दशा तो बहुत दूर रही, वह तो विकारी ही है, वो तो अत्यंत भिन्न है ही, लेकिन ये अप्रमत्त दशा भी उस ज्ञायक से भिन्न है। इस प्रकार जिसने जाना तो वह प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का मोह तोड़कर, प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं अनादिकाल से चली आई, प्रमत्त दशा ही चली आई, अप्रमत्त दशा का तो जन्म भी नहीं हुआ। यहाँ तो आचार्यों कहते हैं कि जैसी क्षण भंगुर प्रमत्त दशा है, ऐसी ही क्षण भंगुर अप्रमत्त दशा है। इसे और क्षण भंगुरता उपादेय कभी नहीं होती, अहम के लायक, ममत्व के लायक कभी नहीं होती। आत्मा का स्वभाव ममत्व करने का है। आत्मा में दर्शन नाम का, श्रद्धा नाम का जो गुण है, उसका काम ही अहम करना और ममत्व करना है। तो वो अहम और ममत्व की पर्याय तो अनादिकाल से होती आई, और उसने उन होने वाली प्रमत्त दशाओं में निरंतर अहम करते हुए अपने आप को यही माना, मैं तो अशुद्ध आत्मा हूँ, अशुद्ध हूँ। और जब थोड़ा समर्थ हुआ, सैनी पंचेंद्री हुआ अथवा मनुष्य हुआ, दिगंबर धर्म का उसको समागम मिल गया, तो बोलने लगा अशुद्ध तो हूँ, लेकिन शुद्ध होकर और मुक्ति को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अपने आप को बंद दशा से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करने वाला माना। तो कहते हैं ये दोनों के दोनों पर्याय के धर्म हैं, दोनों की दोनों पर्याय हैं। तो मैं वर्तमान में तो बंद रूप हूँ, प्रमत्त रूप हूँ, तो प्रमत्त रूप को मैं नाश करके और ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त करूंगा। आचार्य तो कहते हैं कि जो शुद्धात्म तत्व है वो बंध और मोक्ष की रचना से दूर है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रारंभ में ही, प्रथम श्लोक में ही आचार्य कहते हैं आत्मा बंध और मोक्ष की रचना से दूर दूर वर्तता हुआ। बंध और मोक्ष की रचना होती है, बंध की पर्याय भी पैदा हुई और मोक्ष की पर्याय भी पैदा हुई, लेकिन आत्मा न तो बंधन को प्राप्त हुआ और न आत्मा का मोक्ष हुआ, क्योंकि जो सर्वदा मुक्त है उसका मोक्ष कभी होता नहीं है। आत्मा तो अनादि निधन होने के कारण, अनादि अनंत होने के कारण, अविनश्वर होने के कारण वह कभी नष्ट ही नहीं होता, उसमें कभी परिवर्तन ही नहीं होता। तो उसमें बंध और मोक्ष की रचना कैसे होगी जिसमें परिवर्तन नहीं हो? जिसमें परिवर्तन होता है उसमें बंद होकर और उसके पश्चात मुक्त होता है। जो बंधा है वो छूटता है, लेकिन जो जेल गया ही नहीं तो वो क्या छूटेगा, वो कैसे छूटेगा? तो इसी तरह आत्मा जेल गया ही नहीं, कहते हैं वो प्रमत्त दशा, बंध रूप दशा को प्राप्त हुआ ही नहीं, उसे कर्मों ने छुआ ही नहीं, मोह राग द्वेष ने उसको छुआ ही नहीं, और जो दशाएं हैं नाना प्रकार की, उन्होंने उसका स्पर्श किया ही नहीं। जब उसका स्पर्श ही नहीं किया और उन दशाओं का उसमें अत्यंत अभाव रहा,
तो फिर उनका अभाव करने की गुंजाइश कहाँ है उसे? वो उनका जिनका अभाव है, क्या उसका अभाव किया जाता है? तो जिस प्रमत्त दशा का आत्मा में अभाव है, अर्थात आत्मा बंधन को प्राप्त हुआ ही नहीं, तो फिर आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? इसलिए आत्मा बंध की पर्याय से रहित है। तो बंध की पर्याय का अभाव होकर फिर वह मुक्त पर्याय अर्थात अत्यंत शुद्ध पर्याय को प्राप्त करे, ये दोनों बातें उस आत्मा के लिए असंभव हैं। ये दोनों बातें संभव क्योंकि वो ध्रुव तत्व है, शाश्वत तत्व है। शाश्वत तत्व में परिणाम नहीं होता, उसमें पर्याय नहीं होती। अब पर्याय में बंध और मोक्ष होता है, द्रव्य में बंध और मोक्ष इसलिए नहीं होता कि जो द्रव्य है वो तो शाश्वत होने के कारण, ध्रुव होने के कारण, अविनाशी होने के कारण और परिणाम से पर्याय से शून्य होने के कारण उसमें न तो बंधने की गुंजाइश है और न मोक्ष की गुंजाइश है, क्योंकि वो तो अनादि अनंत वही का वही रहता है, उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कर्म आए लेकिन वे आत्मा को बांध नहीं सके, कर्म गए लेकिन वे आत्मा को छोड़कर आत्मा को शुद्ध बनाकर गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अशुद्ध हुआ ही नहीं तो उसके शुद्ध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो प्रमत्त हुआ ही नहीं, बंधा ही नहीं, तो उसका अप्रमत्त होना अर्थात शुद्ध दशाओं का प्रकट होना और फिर मोक्ष हो जाना, ये दोनों बातें ज्ञायक आत्म तत्व में प्रतिष्ठा पाती नहीं है। 14वीं गाथा में कहा है ना, ये आत्मा जो बद्ध स्पष्टादि 5 भावों से रहित है, तो उसमें पर्याय प्रतिष्ठा नहीं पाती। शुद्धात्मा की चर्चा है वहां भी। शुद्धात्म तत्व में पर्याय प्रतिष्ठा नहीं पाती, पर्याय ऊपर ही ऊपर तैरती है, ये शब्द है ऊपरी तरन। तो पर्याय ऊपर ही ऊपर तैरती हैं, द्रव्य के भीतर पर्यायों का प्रवेश। अरे द्रव्य और पर्याय जब दो तत्व हैं तो दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा है। एक का स्वभाव नित्य है, दूसरे का स्वभाव अनित्य है। अगर दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? दोनों मिल जाएं, नित्य और अनित्य मिल जाए तो या तो अनित्य है वो नित्य बन जाएगा, या जो नित्य है वो अनित्य बन जाएगा, और इस तरह आत्मा का नाश हो जाएगा, आत्मा ही नहीं रहेगा। इसलिए पर्याय का द्रव्य में यदि प्रवेश हो जाए, पर्याय पर्याय के स्थान पर रहे ना, यहाँ कौन इनकार करता है? इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं करता कि पर्याय ही न रहे। पर्याय तो रहे, वो तो रहने वाली है। पर्याय नहीं रहेगी तो मैं द्रव्य हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा बोलेगा कौन? अपने आप को अपना तिरोभाव करके, अपने आप को अदृश्य करके, अपने आप को अत्यंत गौण करके ये कौन बोलेगा कि मैं तो शुद्धात्म तत्व ज्ञायक हूँ? ये बोलेगा कौन पर्याय न हो तो? इसलिए पर्याय अपने स्थान पर रहे। पर्याय से द्वेष नहीं है, लेकिन पर्याय इस लायक नहीं है कि वह आत्मा को अवलंबन दे सके, आत्मा को निभा सके। इस लायक वो पर्याय नहीं है। इसलिए पर्याय को आत्मा से आचार्य भिन्न बताते हैं और कहते हैं कि जो ज्ञायक है वो प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं अपनी जगह विद्यमान होने पर भी उस ज्ञायक में प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का पदार्पण नहीं होता, हुआ ही नहीं और भविष्य में कभी होगा भी नहीं। आत्मा का मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए ऐसा कहा जाता है ना। मैंने आत्मा की पर्याय सर्वथा निर्मल हो जाए, लेकिन वो सर्वथा उत्पन्न होने वाली जो नई निर्मलता है, वो उस निर्मलता से वो आत्मा
शून्य ही रहेगा। कहाँ? सिद्ध दशा में। सिद्ध दशा में भी आत्मा उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पूर्ण निर्मल दशाएं हैं, उन पूर्ण निर्मल दशाओं से अनित्य होने के कारण, वे पर्याय अनित्य और क्षणभंगुर होने के कारण, और आत्मा नित्य होने के कारण नित्य में अनित्य का प्रवेश नहीं होता। इसलिए वो आत्मा उन शुद्ध पर्यायों से भी सदा शून्य रहेगा, और शुद्ध पर्याय सदा ही उस ज्ञायक के ही गीत गाती रहेंगी। सिद्ध पर्याय अपने गीत नहीं गाएंगी। वो शुद्ध पर्याय अपने गीत नहीं गाती, क्योंकि उनका धर्म क्या है? बराबर છે ને गायक। वो तो हाँ। स्वयं यह भी नहीं बोलता कि मैं गायक हूँ, उसमें तो ऐसा भी नहीं बोलना है। गायक तो अनबोला कृतकृत्य निष्क्रिय तत्व है। वो, उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें कोई कार्य नहीं होता, वो अकर्ता तत्व है, वो परिणाम शून्य तत्व है। परिणाम शून्य होने के कारण वो गायक यह भी नहीं बोलता है कि मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा नहीं बोलता है। तो फिर पर्याय का काम क्या रहा? पर्याय जो साथ रही, पदार्थ के साथ है जो पर्याय, उस पर्याय का काम क्या रहा? जब गायक बोलता ही नहीं है, अपना परिचय देता ही नहीं है, तो फिर ये काम कौन करेगा? कि उसके साथ रहने वाली जो पर्याय है, उसका काम यह है कि वो गायक का सच्चा परिचय दे। लेकिन सच्चा परिचय अलग रहकर न दे, पर गायक बनकर दे। गायक के साथ एक રજની એટલે હવે ત્રિકાળી દ્રવ્યની વાતો ચાલશે, રાઈટ? યા એકદમ એકદમ બરાબર પરફેક્ટ છે, એકદમ સરસ બધા. હા એમાં એને સર એનું એક વાક્ય હતું યુગલ કિશોરજીનું, ને આપણે બુંદબુંદમાં મૂક્યું છે એને. હા એમાં એને શું કહેલું કે જો મારી દ્રષ્ટિમાંથી, મારી પોતાની દ્રષ્ટિમાંથી હા સમજો પર્યાયનો નાશ થઈ જાય, તો દુનિયામાં કોઈ પર્યાય છે જ નહીં. હા હા. તો હું ધ્રુવ કોઈ પર્યાય છે જ નહીં, એવું ધ્રુવ જ છે. તો ધ્રુવ કહેવા વાળી કોણ છે? તો સમય દર્શન મારા દરવાજા ઉપર ખડું છે, હા હા એટલે એ માણસ સમય દર્શન તરત જ થઈ જાય. હા આપણે આપણું મહત્વ, આપણે આપણું એકત્વ બધું પર્યાયમાં સાંપ્યું છે ને, હા 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 શું રહે? ને હું બધાને, એટલે હું મને ત્રિકાળી દ્રવ્ય માનું, અને પછી બધાને પણ માનું ને હું. આ તો એક કોન્સેપ્ટ છે, કોન્સેપ્ટ છે. થાય છે બરાબર થાય છે કામ પર્યાયની અંદર જ, બરાબર છે, રાઈટ. પણ મારી દ્રષ્ટિમાંથી પર્યાય નાશ થઈ જાય. હા 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 સમય દર્શન મારા દરવાજા ઉપર ઊભું છે એમ. હા હા હા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એટલે એ બહુ સરસ હતું એની અંદર. મને સ્વપ્નાબેન મોકલાવેલું એનું સેન્ટેન્સ. ઓકે, એસે that's the transition. Okay. ત્યારે ત્રિકાળ એનું છે એનું વાક્ય. એટલે ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ, આપણું મહત્વ જે છે, આપણું આખું જે એકત્વ હા છે, હા એ હા દ્રવ્યમાં સ્થપાય, રાઈટ, પર્યાયમાં નહીં. That's all. બરાબર છે. એટલે એ પર્યાય તો એના ગુણ ગાય કે એમ કે ગાવાનું કામ પર્યાય કરે. હા બરાબર છે, બરાબર. કોના ગુણ ગાય? તો કે આ ત્રિકાળી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય, ત્રિકાળી તો ગાઈ શકતો નથી. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હા પેલું છે જ નહીં કઈ, રાઈટ. બરાબર છે. સસિકભાઈ છે કે નહીં આજે? ડલાસ જવાના હતા ને પગ બતાવવા. એકલા પ્રફુલ્લાબેન. પ્રફુલ્લાબેન હા આ નથી, એપોઇન્ટમેન્ટ છે એની, એટલે ગયા છે. રેકોર્ડિંગ બરાબર છે રેકોર્ડિંગ બધું? કર્યું છે. બરાબર છે બધું? હા એપોઇન્ટમેન્ટ છે, હજી અત્યારે ગયા છે. પ્રફુલ્લાબેન, હ્યુસ્ટન ક્યારે આવો છો? આ હ્યુસ્ટન માં છીએ. આવી ગયા તમે એમ ને? હા નહીં, એટલે હજી પાછા ડલાસ જવાના છીએ. અચ્છા, ક્યારે હ્યુસ્ટન ક્યારે આવ્યા? હ્યુસ્ટન અમે ગુરુવાર રાત્રે આવ્યા. અચ્છા, ગુરુવાર આવ્યા. ઓકે ઓકે ચાલો ચાલો. ઓકે ચાલો. एकदम गायक बनकर और अपने आप को अदृश्य करके परिचय दे, तो ये अभेदता की पराकाष्ठा हुई। अभेद तो है ही आत्मा, आत्मा स्वरूप से तो अभेद है ही, लेकिन ये जो क्षणभंगुर पर्याय है, इस क्षणभंगुर पर्याय ने भी अपने आप को अभेद गायक, अभेद शुद्धात्म तत्व जाना और माना, और अभेद शुद्धात्म तत्व जानकर और मानकर ये बोली, मैं तो अभेद शुद्धात्म तत्व हूँ, शाश्वत तत्व हूँ,
इस प्रकार बोली तो वो पर्याय का तो एकदम पर्याय में पर्याय अदृश्य हो गई। क्या हुआ जब वो बोली? क्या उसने अपने आप को माना? क्या कि उसने अपने आप को शाश्वत माना, ध्रुव माना। जब ध्रुव मान लिया उसने अपने आप को, तो जो अध्रुव हैं और शाश्वत नहीं है, क्षण भंगुर हैं, वे उस पर्याय से अन्य तत्व हो गए कि नहीं, परद्रव्य हो गए कि नहीं? इसलिए पर्याय स्वयं परद्रव्यवत हो गई। पर परद्रव्यवत होने पर भी उसका काम जो द्रव्य का परिचय देना है, उसका परिचय वो उसके साथ एक रूप होकर देती है। तो पर्याय द्रव्य बनकर द्रव्य बन नहीं जाती है, लेकिन पर्याय में ही ऐसा अनुभव होता है, मैं तो शाश्वत द्रव्य हूँ, मैं तो शाश्वत जीव तत्व हूँ, शाश्वत परमात्मा तत्व हूँ। ऐसा जो अनुभव है, वो अनुभव वास्तव में सम्यक दर्शन कहलाता है। तब हम कहते हैं सम्यक दर्शन। अन्यथा सम्यक दर्शन में तो सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि उसमें सर्वत्र ज्ञायक पसर गया है सब जगह। वो ज्ञायक की शुद्धात्मा ही उसमें पसर। उसने माना क्या अपने आप को? उसने अपनी काया किसकी बनी हुई मानी? पर्याय ने अपनी जो काया है, क्षणभंगुर काया, उस क्षणभंगुर काया को अब शाश्वत बना लिया। अब वो पर्याय अपने आप को शाश्वत ही बोलती है। यह नहीं बोलती कि मैं उत्पादय वाली हूँ और मेरा मरण भी होता है, ऐसा नहीं बोलती। लेकिन वो उत्पादय इसी तरह चलता रहता है। मैं तो त्रिकाल शाश्वत एक रूप ध्रुव चैतन्य हूँ। ये एक समय में अनुभूति हुई, दूसरे समय में भी यही अनुभूति, त्रिकाल एक रूप शाश्वत ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ। तीसरे समय में भी यही अनुभूति। इस तरह परिणमन भी करती है, तो ध्रुव परिणमन करती है, ध्रुवत्व के अवलंबन से परिणमन करती है। इसलिए ध्रुवत्व के अवलंबन से परिणमन करती हुई क्षणिकत्व से सर्वथा भिन्न रहकर और आनंद का अनुभव करती है। जो क्षणिकत्व का के साथ मैत्री करते हैं, एकत्व करते हैं, उसका अहम करते हैं, वे जीव सदा से दुखी हैं। पज्य मूढ़ाई पर समया, पर्याय मूढ़ पर समय होते हैं। बताया ना आचार्य ने प्रवचन सार में, जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का प्रारंभ हुआ तो आचार्य ने सारे ज्ञेय तत्व के रहस्य को केवल उस गाथा के एक चरण में स्पष्ट कर दिया, एक चरण में भर दिया, एक चरण में उसकी घोषणा कर दी। पदार्थ द्रव्यमय होता है, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, गुणों से पर्याय होती हैं, और पर्याय मूढ़ जीव पर समय होते हैं। ये कहने की कहाँ जरूरत आई थी? वो तो वस्तु व्यवस्था बता रहे थे ना। अरे लेकिन सारी वस्तु व्यवस्था को जानने का एकमात्र जो रहस्य है वो यह है कि उस सारे जगत से भिन्न होकर हम केवल उस पर समयता को, अर्थात पर को, मोह राग द्वेष के भावों को, जीव अजीव आदि पर तत्वों को, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल को, इनको जो आत्मा मान रहे थे, इनसे अपने आत्मत्व को समेट कर अपनी ज्ञायक जो वास्तव में वास्तविक सत्ता स्वरूप आत्मा है, उस सत्ता स्वरूप आत्मा में उस आत्मत्व को स्थापित करें और स्व समय बन जाएं। स्व समय बन जाएं, ये भी कहने की बात, ये भी उसके सामने हल्की बात। मैं तो ज्ञायक हूं, इसके सामने वो बात हल्की है, लेकिन ये बात समझने के लिए तो अवश्य आती है ना। फिर क्या हुआ? कहते हैं वो पर्याय जो है उस स्व समय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली बन गई। इस तरह से वो वस्तु व्यवस्था को जानने का फल क्या? क्या फल? इस सारे कोटा नगर को हमने जाना, इसमें इतने लाख घर हैं, इसमें इतने लाख आदमी बसते हैं, इस तरह सारा जाना, उसमें एक हमारा भी घर है। ये जानने का मतलब क्या? इसका प्रयोजन क्या? इसका प्रयोजन ये कि मेरा तो केवल एक ही बंगला है और जगत के जो बंगले हैं
वे तिलतुष मात्र भी मेरे नहीं हैं। ऐसा जानकर अपने बंगले को अपना मानकर ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस तरह उसमें आदमी प्रवेश करता है और वो भद्र पुरुष सदाचारी कहलाता है। इसी तरह यहाँ सदाचारी पुरुष वो कि जो परद्रव्यों से तो नाता तोड़े ही, विकारी पर्यायों से तो नाता तोड़े ही, लेकिन क्षणभंगुर पर्याय स्वयं अपने आप से अपना संबंध तोड़कर और अपने आप को गौण करके, अदृश्य करके और अदृश्य करती हुई केवल जो दृश्य है, जो तत्व जो दृश्य है, जो उपलब्ध करने योग्य है, क्योंकि ध्रुव है वो, जो ध्रुव है वो सदा एक रूप और एक जगह रहता है, एक स्वरूप रहता है उसका, और वही का वही रहता है, इसलिए वह उपलब्ध हो सकता है। इसलिए क्षणभंगुर पर्याय ध्रुव तत्व बनकर और अपने आप को ध्रुव के रूप में उपलब्ध करे, तो ये सार है सारी वस्तु व्यवस्था का, सारी वस्तु व्यवस्था को जान। इसे हाँ बोल। છે ને ગુરુદેવના પ્રવચનમાં એક વસ્તુ ઘણીવાર આવશે. हाँ આ જે પ્રવચન સાર છે ને હા, એની હા, હા. 172મી ગાથા, हाँ 172મી ગાથા, એમાં અલિંગ ગ્રહણના 20 બોલ હા. છે. हाँ राइट અલિંગ राइट ગ્રહણના એનો આ 20મો બોલ હમણાં જે વાત કરી ને યુગલ કિશોર છે, એટલે પર્યાય એમ માને છે કે હું દ્રવ્ય છું, પણ हाँ हाँ ત્રિકાળી દ્રવ્ય પર્યાયમાં આવતું નથી. हाँ બરાબર છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં જ રહે છે, પણ પર્યાય જે એનું એનું હંમેશા છે ને આપણે રંજનબેન નથી અત્યારે, બાકી હંમેશા રંજનબેન આવતા કે એને જે રચના કરેલી ને કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય કેવો છે हाँ हाँ એની સાથે એ એકત્વ કરે છે. એટલે એ પર્યાય બાય ઇટસેલ્ફ એનું જે સમગ્ર જે થાય છે એમાં હા. એ પર્યાય જુદી રહીને વાત કરે છે એમ. એટલે પર્યાય પોતાને દ્રવ્ય માને છે એમ, દ્રવ્ય ત્યાંનું ત્યાં જ રહે છે. બરાબર રાઈટ રાઈટ. તો એ 20મો બોલ છે પર્યાયનો. બરાબર રમેશભાઈ? આ પ્રફુલ્લાબેન અને મંજુબેન, રતિભાઈ, શીલાબેન. હા બરાબર. હા હા, એટલે આ પર્યાયની એમણે વાત કરી, આપણી આ વાત કરી ને એ 172 ના 20મા અલિંગ ગ્રહણના બોલની વાત કરી. હા. ઘણી વાર એને લે છે એમના પ્રવચનમાં વારે ઘડીએ. એટલે રજનીમાં એમ થયું કે આપણે જે માનીએ છીએ કે હું તો આત્મા જ છું પર્યાયમાં, ઈ વાત થઈ. હા એ વાત થઈ. ઈ વાત થઈ ને. એ જે એકત્વ થયું ને હા એમાં એટલે આત્મા પર્યાયમાં આવીને જ જતો એમ. આવી નથી જતો. આપણે એવું માનીએ જ, અત્યારે માનીએ પર્યાય. છીએ ને કે હા, શ્રદ્ધા પર્યાય. નથી થઈ પણ માનીએ છીએ કે હું આત્મા છું. ઈ વાત થઈ ને. યા હા. ઓકે ઓકે. ને એટલે પર્યાયમાં એવો અનુભવ થયો રાઈટ. આ પર્યાયમાં અનુભવ પર્યાયમાં થાય છે, રાઈટ રાઈટ પર્યાયમાં નથી થતો. બરાબર છે. અચ્છા. હા. એટલે he has reached that state. હા. Okay. એટલે એ વાત, એટલે આ તો શું છે કે આપણે વાત કરી છે યુગલ સજ્જુએ એ હા. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં ઘણી વાર આવશે. હા It સમજી comes ગયો. as a explanation of 20મો બોલ, અલિંગ હા, હા. ગ્રહણનો 20મો બોલ એ તરીકે આવશે. હા 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 એનું એટલે બધું એટલે શું કે બધું એક સાથે મળે છે એમ. હા એમ છે. So he is saying, he is the- what they're saying, one હા. બીજું ગાથા. યુગલ કિશોરજી મેં પ્રવચન સ્થાનની કોઈ બીજી એક ગાથાની વાત કરી ને હા, એને જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપનની વાત કરી ને ત્યારે હા 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 પર્યાય મૂઢા પર સમયા, એટલે 172 પર્યાય મૂઢા પર સમયામાં આવે છે. એટલે એમને તો વાત કરવાની હતી બધી વસ્તુ વ્યવસ્થાની, હા 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 પણ પછી કુંકુનાચાર્ય એ પણ મૂકી દીધું કે પર્યાય મૂઢા પર સમયા એમ. અરે એટલે દ્રવ્યગુણ પર્યાયની વાત કરી. મૂળ છે એમને. હા, એટલે દ્રવ્યગુણ પર્યાયની બધી વાત કરી. હા પછી કીધું કે જે પર્યાયમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે છે પર્યાય મૂઢા, મૂળ છે. અચ્છા. એ પર સમયા. હા 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 એ પછી મિથ્યા દ્રષ્ટિ સમજ નથી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ રહે છે. રાઈટ રાઈટ ઓકે. કેટલું બાકી છે? થોડુંક જ છે એ કહું એક્ઝેક્ટલી. વી આર એટ 35 minutes, એકચ્યુઅલી 47 મિનિટ ટોટલ બતાવે છે. હજી 12 મિનિટ છે. ઓકે, કરું છું. इसलिए आचार्य ने, इसलिए भगवान तीर्थंकर ने 6 द्रव्यों का वर्णन किया कि जीव का ममत्व 6 द्रव्यों में पड़ा है। उन 6 द्रव्यों से छूटकर उसका जो ममत्व है, उसका जो अहम है, वो उसके स्वद्रव्य में,
उसकी स्वसत्ता में उसका अहम आवे, और अहम इस तरह आवे कि ये स्व द्रव्य ही मैं हूँ, ये स्व तत्व ही मैं हूँ, ये परम तत्व ही मैं हूँ, ये परम परमात्मा द्रव्य ही मैं हूँ। ऐसा जो अहम आवे तो वो अहम सम्यक दर्शन कहलाता है, और वो वास्तविक परिणाम है, वो सदाचार का परिणाम है। अरे अपनी सत्ता में अहम करे, कौन करे? कि सत्ता तो वही की वही, जो की त्यों, अविनश्वर, अनादि अनंत रहने वाली है, उसका तो कभी नाश होता नहीं। इसलिए नष्ट होने वाली जो पर्याय है वो अपने नाश होने का ममत्व छोड़कर, नाश होने की श्रद्धा छोड़कर और अविनश्वर में अपने आप को मिला दे, और इस तरह मिलावे कि उसको अपनी सत्ता ही ना दिखाई दे। ऐसी जो पर्याय है वह अविनश्वर बनकर, ज्ञायक बनकर, ध्रुव बनकर अपने आप को प्रस्तुत करती है। ये गाथा का सार है कि मैं प्रमत्त नहीं हूँ और मैं अप्रमत्त। अरे जो कर्मों से बंधा ही नहीं, उसे कर्मों से मुक्त होने का कोई अवकाश और कोई प्रश्न पैदा होता ही नहीं है। जो लोक में भी जो बंधा नहीं है, उसके छूटने का कोई अवकाश नहीं है। अरे जो बंधा ही नहीं, जो कारावास में गया ही नहीं, उसको यदि हम ये कहें कि तुम छूट कर कब आए, तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत बड़ा विसंवाद होगा, बहुत बड़ा झगड़ा होगा। तुमने क्या समझा है मुझे कि मैंने तो छूटने की बात की है, मैंने जेल जाने की बात नहीं की। कि जेल जाने की बात को तो चंबल में डाल दो, छूटने की बात तुमने कैसे की? इसी तरह आत्मा को कहा जाए कि कर्मों से तुम बंधे तो नहीं, हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके तुम मोक्ष कब गए, तुम्हारा मोक्ष कब हुआ? ये कैसी बेहुदा बात करते हो, कैसी कलंक की बात करते हो? मैं बंधा ही कब था, मैं विकारी हुआ ही कब था कि मुझे निर्विकारी होना पड़े? इसलिए मैं निर्विकारी हुआ ही नहीं, मैं तो सदा मैं विकारी हुआ ही नहीं। विकार ने मेरे को स्पर्श ही नहीं किया, विकार का मेरे भीतर पदार्पण ही नहीं हुआ। मैं तो सदा से ही शुद्ध और पवित्रतम तत्व हूँ, और वही अनंत काल तक रहने वाला हूँ। इसलिए निर्विकारी होने की मेरे भीतर गुंजाइश नहीं है। पर्याय तो शुद्ध होती है, सिद्ध पर्याय तो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अति शुद्ध हूँ। अति शुद्ध अर्थात जो कभी अशुद्ध होता ही नहीं, इसलिए उसे शुद्ध होने की कोई गुंजाइश या कोई आवश्यकता रहती नहीं। इस प्रकार से प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं का आचार्य ने वर्णन किया। सरल है बात तो, असल में तो आत्मा की सत्ता शुद्ध ज्ञायक रूप है, ज्ञान और आनंद स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, अविनाशी है। हम जानते हैं कि आज तक भी आत्मा की मौत नहीं हुई। अनेक बार मर जाने पर भी आत्मा मरा नहीं, आज भी वो जिंदा का जिंदा है। जिसको मरना था, पर्याय को जाना था, पर्याय को मिटना था, मनुष्य पर्याय को मिटना था, और देव पर्याय आनी थी तो वो आ गई। लेकिन दोनों में आत्मा तो वही का वही रहा। जो मनुष्य पर्याय में आत्मा है, वही आत्मा देव पर्याय में रहा, इसलिए वो तो वही का वही रहता है। ऐसा वही का वही रहने वाला आत्म तत्व वो सदा से बिसारा गया, सदा से भुलाया गया, और यही मान लिया गया कि मैं तो मनुष्य ही हूँ। इसलिए भय क्यों होता है, चिंता क्यों होती है, आकुलता क्यों होती है? मनुष्य ही हूँ जब जीव ये मान लेता है, तो फिर उसको ये भी मालूम है कि मनुष्य पर्याय का तो एक दिन अंत होना है। इसलिए उसे निरंतर मौत की तलवार सिर पर झूलती रहती है, और वो चिंतित रहता है। घर में हो तो मृत्यु से चिंतित, घर से बाहर जावे तो मृत्यु से चिंतित, ज्योतिषियों को दिखावे तो मृत्यु से चिंतित। इस तरह मृत्यु से सदा चिंतित रहता है, क्योंकि अपने आप को उसने क्षण भंगुर ही माना है। अब साथ में है दो तत्व, एक है क्षण भंगुर और एक है ध्रुव। तो क्षण भंगुर और ध्रुव, इन दोनों में से अगर चुनाव करने का अवसर आवे तो चुनाव किसका करेगा आदमी?
किसका चुनाव करेगा? कि क्षणभंगुर का चुनाव क्यों करेगा? वो तो एक समय में मिट जाने वाला है और फिर कभी मिलने वाला नहीं है। अरे क्षणभंगुर पर मोहित होने वाला इसलिए कष्ट पाता है क्योंकि उसका तो मोह क्षणभंगुर में था ना, उसको वो सुंदर लग रहा था ना, उसको उस क्षणिक पर्याय के साथ प्रीति थी ना, तो वो क्षणिक पर्याय जब गई तो जाते ही वो तड़फने लगा, जाते ही उसका रोम रोम खड़ा हो गया और अंत में रुदन और विलाप होने लगा। ये क्षणभंगुर पर्याय के साथ मोह करने के अनंत दुखदायक परिणाम हमारे अनादिकाल से चले हैं। उनका अंत करने के लिए आचार्य ने छठी गाथा का प्रारंभ किया है। क्यों प्रारंभ किया? कि जीव का कष्ट एक क्षण में मिट जाए। अरे सत्ता जो अनादि अनंत है वो तो अनादि अनंत रहने ही वाली है आत्मा की। प्रत्येक ही पदार्थ की सत्ता वो तो अनादि अनंत है। अचेतन पदार्थ भी सारे ऐसे ही हैं और उनकी सत्ता भी अनादि अनंत। कभी नाश हुए? पुद्गल का नाश हो गया, पुद्गल परमाणु का नाश हो गया। आत्म तत्व है तो आत्मा का ही अगर नाश हो जाता, आत्म वस्तु ही अगर नहीं रहती इस जगत में, तो आत्मा का अभाव हो जाता ना। जब आत्मा का अभाव हो जाता तो फिर नरक कौन जाता? जब आत्मा ही नहीं है तो नरक कौन जाएगा? फिर स्वर्ग कौन जाएगा? तो आत्मा क्षणभंगुर ही यदि होता तो उसका तो विनाश हो जाता ना। विनाश होने के बाद फिर उत्पत्ति कैसे होती? क्योंकि सर्वथा अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए अगर वो केवल आत्मा ही होता तो उसका नाश हो गया होता और वो आत्मा आज सत्ता के रूप में दिखाई नहीं देता। लेकिन आत्मा की सत्ता तो आज हमारे अनुभव में आती है। तो लेकिन उस अनुभव में आने वाली सत्ता को निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी दृढ़ता से संकल्पबद्ध होकर मैं तो अजर और अमर अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा जिसने नहीं माना तो वो निरंतर क्षणभंगुर पर्याय में व्यस्त होकर, उन्हीं में रमणशील होकर, अरे मैं मनुष्य हूँ लेकिन एक दिन मर जाएंगे, सबके मुंह से ही निकलता है, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन किसी के मुंह से ये निकलता हुआ देखा? किसी के मुंह से ये बात निकली? अरे एक दिन मरना है, वो मर जाएंगे, किसी तरह मर जाएंगे, लेकिन मैं मरने वाला हूं ही नहीं, मैं तो मौत मुझे आती ही नहीं है। इस तरह जो सम्यक दर्शन आत्मा को अजर और अमर देखकर स्वयं अजरता और अमरता का अनुभव करता हुआ ज्ञायक बन जाता है, उस सम्यक दर्शन की ये चर्चा है, उसकी गाथा है ये। कैसे सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति हो, ऐसी सुंदर गाथा है। तो सत्ता तो सदा रहती है, तो सत्ता सदा ज्यों की त्यों रहकर, क्योंकि वो ध्रुव है और ध्रुव में परिणाम पर्याय नहीं होती है, पर्याय हुए बिना बोला नहीं जा सकता। बोलती कौन है? पर्याय बोलती है। ये जो सारा शरीर है ये तो ज्यों का त्यों वैसे वही का वही है ना, मनुष्यत्व तो। लेकिन बोलती कौन है? इसमें चलने वाली जीव, चलने वाली जीव बोलती है कि मैं मनुष्य हूँ। इस तरह पर्याय बोलती है। तो जो ध्रुव तत्व है वो बोलता नहीं, वो तो वही का वही अनबोला रहता है। इसलिए पर्याय का धर्म हुआ ये कि वो वस्तु का सही परिचय दे, वो वस्तु का गलत परिचय देती है और वो स्वयं आत्मा बन जाती है। वो स्वयं आत्मा बनकर अपने आप को इतना ही मानकर, अपने आप को क्षणिक ही मानकर, मनुष्य तिर्यंच देव और नार की ही मानकर कहती है, अरे मैं तो नार की हूँ। अरे नरक में भी अगर जीव को यह बोध हो जाए कि मैं नार की नहीं, मैं तो शाश्वत चैतन्य तत्व हूँ, तो उसको वहीं उस शाश्वतिक चैतन्य तत्व का अनुभव होते हुए वो वहां भी सुखी हो जाता है, निराकुल हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। और होती क्या है दशा? मैं तो शाश्वत ज्ञायक तत्व हूँ। ये नार की बोलता है। नरक में मैं नहीं, नरक के वायुमंडल में नहीं, नरक मुझे छूता नहीं, नरक मुझे जलाता नहीं, नरक की जो पहुंच है वो मेरे तक है ही नहीं।
नरक का मैंने नरक का कभी स्पर्श नहीं किया, मैं नरक गया ही नहीं, क्योंकि नरक पर्याय को कभी मैंने भोगा ही नहीं। ऐसा तो आत्मा का स्वरूप ही है कि वो नरक पर्याय को कभी भोगता नहीं है, क्योंकि वो तो पवित्र है, वो तो निर्मल और ध्रुव है, इसलिए नरक पर्याय को नहीं भोगता है। लेकिन पर्याय में ये पागलपन आ गया है, ज्ञान और दर्शन की पर्याय में ये पागलपन आया, और उस पागलपन के कारण वो माना करती हैं, अरे मैं तो नरक में आ गया, मैं तो जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, मेरे टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा मानता हुआ आकुलित होता है। उसी क्षण अगर ये मान ले, न मैं जलता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मेरा छेदन भेदन होता है, मैं शाश्वत और निराकुल जीव तत्व हूँ, मैं तो परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा हूँ। भगवान सर्वज्ञ की निर्मल पर्याय जैसा मेरा निर्मल द्रव्य है, ऐसा शाश्वत आत्म द्रव्य मैं हूँ, ऐसा अगर नारकी भी मान लेता है तो उसको भी सिद्धों जैसे आनंद का अनुभव होता है। जैसे आनंद का भगवान सिद्ध अनुभव करते हैं, ऐसे आनंद का अनुभव वो नारकी भी करता है। ऐसे आनंद को उत्पन्न करने वाली ये छठी गाथा है। समय हो गया, आगे बात करें। Oh, well, so, okay, let's see. Okay, ઇન્દ્વેન આજે સ્તુતિ કરી, અત્યારે જે આ જીનવાળી સ્તુતિ કરીએ ને પછી અલગ કરીએ આપણે હા પછી અલગ કરી, બરાબર છે. ઓકે એવું જ ઓકે, કરીએ ને આ પેલા બંધ કરીએ ને ના પાછું તમારે ઈ બી ગાવાનું જ છે ઓલામાં બી. સારું સારું, એમ કરો જેમ કરો. હા તમે આપણે જેમ કરો તો અત્યારે પેલા પૂરું કરવાનું બોલી લઉં એ જીનવાળી બાર મંજુબેન બધું સાંભળવું છે ને કે ના ના અત્યારે અત્યારે આ કેસેટ પેલા બંધ કરી દો. ઓકે સારું સારું સારું. હા એટલે તો અહીંયા રેકોર્ડિંગ અહીંયા સ્ટોપ કરું કે ના હા, એની ઉભા રહો, એક જીનવાણી કરી મિનિટ. દો. એ ઓકે જીનવાણી ભારતી તોય ઓકે જપો દિન નैन जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सौवाणी मस्तकन में सदा देत हूँ डोक निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सतबार है वंदना सतबार है अनेकात्माई नित्य बोधनी श्री जिनवाणी मातनो जय हो परम उपकारी श्री सदगुरु देवनो जय हो स्वसंबुद्धि धन्य अवतार भगवती मातनो जय हो सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो ઓકે એક આ વાત રેકોર્ડિંગ બંધ